Good morning, dear kids. I am presenting to you Standard 4th subject NCERT English, and today we are going to learn about Unit 4 story Alice in Wonderland. This story is written by Lewis Carroll. Let's see about the summary of this story. There was a story about Alice, a girl, and a rabbit who can speak. Once Alice was attracted towards a white talking rabbit running fastly in the garden. एक बार एलिस बगीचे में घूम रही थी तो उसने एक बोलने वाले रैबिट को देखा, खरगोश को देखा और उसके पीछे वो आकर्षित हो गई. He was wearing a blue waistcoat and had a watch in his hand by which she became curious for this strange rabbit. वो रैबिट ने नीले कलर का जैकेट पहना था, वेस्टकोट, और उसके हाथ में घड़ी थी, तो जिसके कारण एलिस वो खरगोश के बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो गई, बहुत ही जिज्ञासु हो गई. She kept following him. Soon the rabbit suddenly jumped into a rabbit hole. एलिस उसका पीछा करती रही तो भागते भागते खरगोश अचानक से एक होल में गिर गया. Alice also jumped after him. She kept falling and falling in the deep hole. एलिस भी उसके पीछे वो होल में गिर गई और वो गहरे गड्ढे में गिरती ही गई, गिरती चली गई. On reaching there, she saw a lovely garden full of beautiful flowers and cool fountains. She wished that she could become smaller and enter into the beautiful garden. नीचे पहुंचने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर फूल वाले बगीचे को देखा जो शीतल झरनों से और बहुत ही खुशबूदार फूलों से भरा हुआ था. उसने चाहा कि काश वह छोटी हो पाती और वो सुंदर गार्डन में घुस पाती. ओके, तो ये थी एलिस की और रैबिट की स्टोरी. नाउ उसे हम टेक्स्ट बुक में रीड करेंगे. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस ट्री के नीचे आराम कर रही थी और स्टोरी सुन रही थी जो उसकी सिस्टर रीड कर रही थी. Suddenly she saw a white rabbit scampered by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." अचानक उसने एक सफ़ेद खरगोश को, सफ़ेद रैबिट को हड़बड़ी में दौड़ते हुए देखा. उसकी आंखें बहुत ही गुलाबी थी और उसने नीला कोट पहना था और उसने अपनी वास्केट के जैकेट से एक बड़ी सी घड़ी निकाली, वॉच निकाली और हड़बड़ाते हुए रैबिट बोला कि अरे मैं बहुत ही लेट हो जाऊंगा. She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit, a rabbit who wears waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. उसने सोचा कि ये रैबिट बहुत ही अलग था, वो बोल सकता था. उसने रेड कलर का बास्केट पहना था, उसके पास वॉच भी थी. तो एलिस सोचने लगी कि एक बोलता हुआ खरगोश, बास्केट पहनने वाला खरगोश. तो उसकी उत्सुकता की आग बहुत ही बढ़ने लगी और वो वाइट रैबिट का पीछा करने लगी. Let's see on the next page. The rabbit started running and Alice followed the rabbit. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down and down and down into the rabbit hole. रैबिट ने अचानक से भागना शुरू किया तो एलिस ने उसके पीछे भागते भागते चली गई. तो खरगोश वो जो था वो एकदम से एक बड़े से होल में गिरा तो
एलिस भी उसके पीछे छलांग लगा के वो होल में गिर गई और रैबिट के साथ एलिस भी उसमें गिरती चली गई। Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." She wondered, "Will I slip through the earth to the other side?" एलिस चिल्लाई कि मैं कहाँ हूँ, मैं कितने मील नीचे आ गई हूँ, मैं अवश्य ही पृथ्वी के बीच में कहीं होंगी। उसने आश्चर्य के साथ सोचा कि ये कैसे हो सकता है, शायद तो मैं फिसलते फिसलते नीचे गिरते गिरते पृथ्वी के दूसरी ओर तो नहीं आ गई हूँ। वो ऐसे सोचने लगी। थंब एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting." Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. It was too small to her to go through. एलिस सूखी पत्तियों के ढेर पे एक थप करके गिर गई। वह तुरंत चारों ओर देखने लगी तो अचानक से उसकी नज़र रैबिट पे पड़ी और ऐसे कहते हुए रैबिट फिर से डिसअपियर होने लगा कि मेरे कान और मूछे कितनी देर हो रही है। ऐसा बोलते बोलते रैबिट फिर गायब हो गया। तो एलिस खड़ी हुई और उसने देखा एक 15 इंच का एक छोटा सा दरवाज़ा था जो उसके लिए अंदर घुसने के लिए, वो दरवाजे के अंदर घुसने के लिए वो बहुत ही बड़ी थी और दरवाज़ा काफ़ी छोटा था। She saw a glass table with a golden key on it. She tried the little golden key in the lock. To her delight, it fit. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. "Oh, how I wish I could become smaller," she exclaimed loudly. एलिस की नज़र फिर एक कांच के टेबल पे पड़ी सोने की चाबी पे गई तो उसने सोचा कि ये नन्ही गोल्डन की ये दरवाजे को खोलने की होगी शायद। तो उसने ट्राई किया, दरवाज़ा खुल भी गया पर दरवाज़ा इतना छोटा था कि उसका सर भी वो दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता था। उसने दरवाज़ा खोलते ही एक बहुत ही फ्लावरों से भरा गार्डन देखा और वो अंदर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, बट वो अंदर नहीं जा सकती थी कि उसके छोटा होना पड़ता। तो वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में चिल्लाई कि ओ काश मैं छोटी हो पाती और ये ब्यूटीफुल गार्डन में अंदर जा सकती। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। दिस स्टोरी इज़ एडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरोल, एज आई टोल्ड यू बिफोर। एलिस इन वंडरलैंड एक स्टोरी बुक है। ये पूरी स्टोरी आगे आप पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाउ लेट्स सी अबाउट द न्यू वर्ड्स। स्कैम्पर, SCAMPER, स्कैम्पर मीन्स टू रन फास्ट। HURRIED, hurried means to run fastly, तेज भागना। पॉप्ड, POPPED, पॉप्ड, पॉप मीन्स अचानक, सडनली। DISAPPEARED, disappeared, disappeared means vanished, could not be seen, दिखाई ना देना। whiskers, WHISKERS, whiskers means long thick hair on face, means मूछे। Now students, let's see about the solution of this story. Now let's start with the question answers first of chapter 4. While listening to the story, what did Alice see? Story सुनते सुनते एलिस ने क्या देखा? तो आंसर है, while listening to the story, Alice suddenly saw a white rabbit which was going somewhere hurriedly.
स्टोरी सुनते सुनते एलिस ने एक वाइट रैबिट देखा, सफ़ेद खरगोश देखा, वो कहीं हड़बड़ाहट में जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ? एलिस ने जो रैबिट देखा उसमें डिफरेंट क्या था? द रैबिट दैट एलिस सॉ डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इट वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्टकोट। एलिस ने जो रैबिट देखा वो दूसरे रैबिट से इसलिए अलग था कि उसने ब्लू कोट पहना था और वे रेड कलर का वेस्टकोट पहना था। नंबर 2, इट वॉज गोइंग समवेयर हरीडली। वो कहीं जाने की बहुत ही जल्दी में था। इट कुड स्पीक, वो बोल सकता था। इट हैड पिंक आइज, उसकी आइज पिंक थी। ज़्यादातर रैबिट की आइज या तो ब्लैक होती है या तो रेड होती है। इट हैड अ बिग वॉच, उसके पास एक बड़ी सी घड़ी भी थी, तो इसलिए वो रैबिट बहुत ही डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट कहाँ पे गया? द रैबिट एंटर द डीप रैबिट होल। रैबिट एक बहुत ही नीचे एक रैबिट होल में गिर गया। नंबर 4, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? एलिस वंडरलैंड में कैसे पहुंची? एलिस फॉलोइंग द स्ट्रेंज रैबिट जम्प इनटू द रैबिट होल। She had a great fall into the deep rabbit hole. She fell on the heap of dry leaves and thus reached Wonderland. एलिस वो रैबिट को फॉलो करते हुए उसके पीछे ही उसने जंप कर दिया रैबिट के होल में और उसको बहुत ही गहरे खड्डे में वो गिर गई और जैसे ही वो गिरी तो वो ड्राई लीव्स पे गिरी और ऐसे वो वंडरलैंड में पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी? ऐसी कौन सी थिंग्स थी जो बहुत ही स्ट्रेंज थी जो एलिस ने देखी? इन वंडरलैंड एवरीथिंग वॉज वेरी स्ट्रेंज। एलिस सॉ अ वेरी स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस high. She saw a strange white rabbit entering the door. Alice further saw a glass table on which a golden key was lying. She opened the lock with the golden key. सबसे पहले तो एलिस ने एक 15 इंच का दरवाज़ा देखा, डोर देखा। 15 इंच बहुत ही छोटी लंबाई होती है, तो इतना छोटा दरवाज़ा में मोस्टली इंसेक्ट या वो सभी जा सकते हैं, बट वो रैबिट उसमें से चला गया। फिर आगे चल के एलिस ने देखा एक कांच का टेबल था, उसमें गोल्डन की थी और वो गोल्डन की से वो दरवाज़ा ओपन होता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट द गार्डन एलिस सो। When Alice opened the door, she found a beautiful garden. It was the most beautiful garden that Alice had seen in her life. There was various colored flowers in the garden. The fragrance was very attractive. The garden also had fountains. She wished that she could stay there forever. एलिस ने जो गार्डन देखा वो जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसने ऐसा ब्यूटीफुल गार्डन कभी भी नहीं देखा था। उसमें बहुत ही तरह तरह के फ्लावर्स थे और उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। उसमें फाउंटेन्स भी थे, तो वो विश करती है कि ऐसे बढ़िया से ब्यूटीफुल से गार्डन में वो हमेशा के लिए रह पाती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। द रैबिट हैड पिंक आइज। Who was burning with curiosity? Alice. Who fell down and down and down? The rabbit. Who said, "Oh my ears and whiskers, let is catching"? The rabbit. The garden Alice saw was lovely. Describe some of the sounds you hear at night. आपको नाइट में कैसे आवाज़ सुनाई देते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। During night, strange sounds of owls call, blowing wind and night watchman whistle are heard. They are something horrifying. रात में हमें आउल की आवाज़ें, हवा की आवाज़, क्योंकि बहुत शांत एटमॉस्फेयर होता है तो हवा की आवाज़ आती है, और जो गार्ड होता है वॉचमैन उसकी विसल की आवाज़ आती है, जो समटाइम नाइट को आती है, तो हमें बहुत ही हॉरिबल फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू?
आप इमेजिन करो कि आप एलिस हो और आपका पार्टनर जो है वो रैबिट है, तो आप क्या करोगे? इफ़ आई वर एलिस एंड माई पार्टनर वर अ रैबिट, आई वुड डू एग्जैक्टली वॉट एलिस डिड. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड फॉलो माई पार्टनर टू द वंडरलैंड. जो मैं एलिस होती और मेरा पार्टनर जो है वो रैबिट होता, तो मैं एग्जैक्टली जो एलिस ने किया ये स्टोरी में, उस तरीके से ही मैं करती कि मैं मेरे पार्टनर को वंडरलैंड जाते हुए फॉलो करती. Question number 10. What would you think Alice saw in the garden? Alice saw beautiful flowers, fountains, a good scenery in the garden. She also felt the pleasant fragrance of colorful flowers. एलिस ने गार्डन में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर, फाउंटेन और एक गुड सीनरी देखी और उसने जो फ्लावर्स की प्लीजेंट फ्रेग्रेंस थी उसको भी फील किया. Number 11 question is, how could Alice have got into the garden? एलिस को गार्डन में कैसे जाना चाहिए? If Alice could become smaller, she would have got into the garden. एलिस अगर छोटी बन सकती है तो वो गार्डन में जा सकती है. Find one word from the story that means to walk fast. तो उसका फर्स्ट लेटर चालू होता है H से, तो वो है हरी, HURRY, हरी. टू थिंक के लिए दूसरा वर्ड है जो W से स्टार्ट होता है वंडर, WONDER. हैप्पी के लिए दूसरा वर्ड है जो D से स्टार्ट होता है डिलाइट. देन नंबर D, टू बी सीन नो वेयर, कहीं पे भी ना दिखना, तो उसके लिए वर्ड जो D से स्टार्ट होता है डिसअपियर. एट वंस के लिए जो Q से शुरू होता है वो शब्द है क्विकली. देन मूव फास्ट के लिए स्कैम्पर जो S से स्टार्ट होता है. टू बी इंक्यूसिटिव जो C से स्टार्ट होता है वो है क्यूरियस. नाउ गिव अनदर वर्ड फॉर गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग and make sentences with each of the opposite of the describing word and make sentences with them. हमें वर्ड दिया गया है लवली, उसका सिमिलर वर्ड है अट्रैक्टिव और उसका ऑपोजिट वर्ड है नेस्टी. तो हम दोनों वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे. शीला's dress was very attractive. श्रवण had nasty nature. टॉकिंग, उसका सिमिलर वर्ड है चैटिंग और उसका ऑपोजिट है साइलेंट. अरुण वॉज चैटिंग ऑन द कंप्यूटर, द क्लास वॉज साइलेंट. लिसनिंग, उसका मीनिंग है हियरिंग और उसका ऑपोजिट है स्पीकिंग. फादर वॉज हियरिंग द न्यूज़ ऑन द रेडियो, मदर वॉज स्पीकिंग टू द नेबर. सी, तो उसका मीनिंग है लुक एट और उसका ऑपोजिट वर्ड है इग्नोर. तो उसके लिए सेंटेंस बनाएंगे. लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर, रैबिट इग्नोर्ड एलिस. नेक्स्ट वर्ड इज सेंटर, तो उसका सिमिलर वर्ड है कोर और उसका ऑपोजिट वर्ड है बॉर्डर. प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द कोर प्रॉब्लम. आर्मी मैन लिव्ड एट द बॉर्डर ऑफ अवर कंट्री. Now question number 14 is, imagine you are going to on a journey to the center of the earth. What do you think you will see? What do you feel? In the beginning, I would see rocks, dust, soil, water and mud. A little deeper, I could see solid rocks. At the center of the earth, I would see red hot core which will have thousands degrees of temperature. With increasing depth, the temperature of interior earth would increase. Further, I would encounter volcanoes, hot magma, rocks in liquid form. जैसे जैसे ही मैं सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ बढ़ती तो मुझे वहाँ पे बिगिनिंग में दिखता रॉक, डस्ट, सॉइल, वाटर, मड और थोड़ा बहुत अंदर जाने के बाद सॉलिड रॉक. और सेंटर ऑफ द अर्थ में रेड हॉट कोर दिखेगा, वहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर होगा. जैसे जैसे ही हम डेप्थ में जाएंगे उस तरह से टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और जैसे हम आगे जाएंगे तो वॉल्केनोज, हॉट मैग्मा और रॉक्स लिक्विड फॉर्म में हमें दिखेंगे.
Question number 15. Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make questions that Alice has in her mind and put question mark. Talk rabbit how can, तो उसके लिए how can a rabbit talk. Next is where is he going. Next, can he read the time. Next is why is he in a hurry. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन के जो जंबल वर्ड्स थे उसको रीअरेंज करके प्रॉपर क्वेश्चन बनाया. तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर और उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ख़त्म होती है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.